تصوری پر مبنی ایونٹ سائن تھے، میورل تھے، مجسمے تھے۔ کیا اس بستی میں صرف مصور اور فنکار بستے ہیں؟ نہ لاہور جیسا، نہ ہی دلی جیسا، اور نہ ہی بمبئی اور تہران جیسا، اور نہ ہی استنبول جیسا۔ یہ کیسا شہر ہے؟ واقعی یہ مختلف جہان لگا۔ کھیت ہیں، کھلیان ہیں، کارخانے ہیں، گھر ہے، سب کچھ، مگر مارا ماری نفسا نفسی نہیں۔ چلتی ٹرین پر کئی جگہوں پر گیوگری دیمیتروف، کارل مارکس، تودور جائیکوف کے بڑے بڑے نیون سائن نظر آئے۔ مزدوروں، محنت کشوں، عورتوں اور فاختاؤں پر مشتمل مصوریوں کے شاہکار یہ شہر ہے کہ آرٹ گیلری۔ یہ چند سطور ہیں جو میں اپنی بڑی مقبول ہونے والی کتاب میں ہوں جہانگیر سے پڑھ رہا ہوں، اور آگے بھی پڑھتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے صوفیہ کے وسط میں بانیہ باشی مسجد، جسے دنیا کے مشہور آرکیٹیکٹ معمار سنان نے آٹومن دور میں بنوایا، اور اس کے سامنے ایک خوبصورت گرجا گھر اور ساتھ ہی یہودیوں کا سینیگاگ۔ یہ ہے صوفیہ کا حسن جو میں نے اشتراکی دور میں دیکھا، جسے میں سرخ جنت کہتا ہوں اپنی اس کتاب میں ہوں جہانگیر میں۔ اشتراکی دنیا، کمیونسٹ دنیا، میری سرخ جنت، اس کے بارے میں جو جھوٹ امریکیوں نے ہمیں پڑھایا ہم نے پڑھ لیا اور اس پر اندھا یقین کر لیا۔ میں نے یہ مسجد کمیونسٹ دور میں آباد دیکھی، سینیگاگ یہودیوں کا عبادت گاہ بھی اور گرجا گھر بھی۔ میں نے اس کمیونسٹ دور میں کیا دیکھا اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ میں نے وہ دیکھا جو ہماری دنیا میں بیان نہیں کیا گیا۔ ہماری دنیا میں وہ بیان کیا گیا جو ہمارے آقا سامراج، امریکی سامراج نے ہمیں پڑھایا، سکھایا، اور ہم نے اس پر اندھا یقین کر لیا۔ یہ صوفیہ کا ایک گرم حمام ہے، گرم چشموں کا حمام، 250-300 سال پہلے۔ اس شہر کو میں نے اتنا خوبصورت پایا کہ اس کی گرفت میں آ گیا۔ اس کے بارے میں اپنی اسی کتاب میں ہوں جہانگیر میں اپنی کتاب سے چند سطور پیش خدمت ہیں۔ میں ایک مارکسی ملک میں تھا، کھونے کے لیے زنجیریں اور پانے کے لیے سارا جہان۔ کارل مارکس کا یہ جملہ میری زندگی کی جہد اور رزق میں ہمیشہ ہمت بندھاتا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر جیب میں بلغارین کرنسی نہیں تو کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد ایک ٹرام سٹاپ پر آ کر رکی تو انہی سواریوں میں سے ایک لڑکی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ ہے تمہاری ٹرام نمبر 20۔ یہ بتاتا چلوں کہ ٹرام نمبر 20 میں ہوں جہانگیر میں ایک پورا باب ہے اس پر، لیکن اب چند سطور اور پیش خدمت ہیں صوفیہ کے بارے میں۔ ٹرام کا دروازہ کھلا، میرے آگے 2 سواریاں تھیں۔ انہوں نے کھڑکی کے ساتھ ٹکٹ پنچ کرنے والی ایک مشین سے اپنے ٹکٹ خود ہی پنچ کیے اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ میرے پاس بھلا کہاں سے ٹکٹ آنا تھا جو اس مشین پر پنچ کرتا؟ میں خاموشی سے کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ ٹرام کی خاتون ڈرائیور نے ٹرام کا گیئر لگایا اور ٹرام چل پڑی۔ چند ہی قدم بعد میرے دائیں جانب ایک نہایت ہی خوبصورت عمارت تھی، سیاہ چھتیں، سرخی مائل اور سفید دیواروں میں نہایت نفیس فن تعمیر۔ مسلم اسپین کا
मखसूस फन तामीर जो यूरोप में एक वक्त में बहुत मकबूल हुआ। मोरिश रिवाइवल आर्किटेक्चर कहते हैं इसे। ये बल्गारिया की मारूफ तरीन यहूदियों की इबादत गाह थी, सोफिया का सिनेगॉग। फन तामीर से मुस्लिम स्पेन की झलक नुमाया थी। कहते हैं कि इसके अंदर सोने का 7.1 टन वजनी फानूस लटक रहा है, और यह भी कहा जाता है कि यह फलस्तीन से लाए सोने से बना है। ट्राम इसके ऐन सामने खड़ी थी और सवारियां उतरी और चढ़ी। फिर आगे मैं लिखता हूं, हमारे यहां तो कहा जाता है कि कम्युनिस्ट ममालिक में तमाम इबादत गाहों पर कुफल लगे हैं। क्या सिनेगॉग और क्या चर्च और क्या मसाजिद, सभी बंद हैं। मैं हैरत से इसे तक रहा था। इसी दौरान ट्राम की ड्राइवर ने लटकती घंटी को बजाया और ट्राम फिर चल पड़ी। मैं सोफिया के नज़ारों के लुत्फ में गुम हो गया। ट्राम अभी ग्योगरी दिमित्रोव बुलेवार्ड पर थी। चंद ही सातों बाद मैंने क्या देखा। मेरे बाएं जानब एक मस्जिद थी। इसका स्याह गुंबद और मीनार एक है। ये कैसे मुमकिन है? मस्जिद और कम्युनिस्ट मुल्क। फिर सोचा कुफर लगे होंगे। देखा तो चंद नमाजी टोपियां पहने मस्जिद से नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। मेरी तो आंखें हैरत से पलक झपकने के लिए भी तैयार नहीं थी। कम्युनिज्म और नमाज की इजाजत? भला ये कैसे मुमकिन है? मगर वहां से तो नमाजी भी निकलते देखे। कम्युनिज्म में नमाज, मुसलमान और इस्लाम। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ यकीन करवाया गया था कि कम्युनिस्ट ममालिक की सब इबादत गाहों पर कुफर लगा दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं और मेरा ये क्लिप देख रहे हैं, मैंने सोफिया को किस कदर खूबसूरत पाया, उसके हुस्न और उसके सहर की गिरफ्त में किस कदर काबू में आ गया। अगर इसको देखना और पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताब मैं हूं जहांगर्द में पढ़ें। मैंने दुनिया की बस्तियां देखी हैं, आबाद बस्तियां, वीरान नहीं। सोफिया जैसी बस्तियां कम ही हैं इस दुनिया में। इस शहर का हुस्न इसके मकान और मकीन है। इस शहर के लोगों के आदाब जिंदगी हैं, और लोगों का हुस्न बलकान का हुस्न। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहां हर तरफ खुशबू फैली होती है, इसलिए कि बल्गारियन रोज दुनिया का सबसे खूबसूरत खुशबू देने वाला गुलाब है, और जगह जगह पर इसकी दुकानें, और वहां पर बिकने वाला बल्गेरियन रोज जो इस शहर की फिजा को मुअत्तर कर देता है। लेकिन इस शहर की इमारतें
किस कदर अजीम हैं, आप सुनिए। ये कम्युनिस्ट बल्गारिया की कम्युनिस्ट दौर में बल्गारिया की कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटेरिएट था और उस वक्त ऐसी इमारत को, और इसको भी कहा जाता था अगली स्टालिनिस्ट कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो था। आज भी ये बल्गारिया का सबसे बड़ा हुस्न है। 30 साल से जब से बल्गारिया में कम्युनिज्म ख़त्म हुआ है, अभी तक ऐसी कोई इमारत नहीं बना पाया बल्गारिया या बल्गारिया का सरमायादारी निज़ाम या रियासत। और ये बल्कान होटल है, पहले ये शेरेटन होटल हो गया, ये बड़ा सा जो है, और अब फिर दोबारा बल्कान होटल हो गया। ये उसी दौर का बना हुआ है और इसके साथ प्रेसिडेंट ऑफिस है, वो पीछे वो भी बल्गारिया के कम्युनिस्ट पीरियड की इमारत है। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये वाला, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ये दूसरी दौर का बना, ये सारी इमारतें हैं। उस वक्त बड़ा प्लाजा था, आज भी एक कमर्शियल मार्केट है। बल्गारिया सोफिया का आज भी सबसे बड़ा हुस्न यही स्क्वायर है। मैंने बल्गारिया के इस खूबसूरत शहर सोफिया के अंदर एक और खूबसूरत चीज देखी, डिंकी जैसी चलने वाली ट्रामें। मेरे लिए बहुत खूबसूरत ट्रामें हैं। जैसे मैंने कहा, ट्राम नंबर 20 तो मेरी फेवरेट है और ट्राम नंबर 10 ये सोफिया का हुस्न है। ऐसे आती जाती ट्रामें सोफिया की जिंदगी के आसार हैं। जैसे मैंने 1983 में देखा और इस वीडियो क्लिप के मुताबिक 2019 में देखा, कुछ बदला नहीं, सिवाय इसके के निजाम बदल गया। इश्तराकियत की जगह सरमायादारी आ गई। इश्तराकियत जिसने इस शहर को और इस मुल्क को मुसव्वरी का मुल्क बना दिया, फनकारों का मुल्क, यानी कि हर तरफ मुसव्वरी और फनकारों के शाहपारे थे, अब सरमायादारी है। और ये है इस शहर के मुसलमानों का मरकज, सेंटर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ बल्गारिया। इस बारे में मैंने अपनी किताब मैं हूं जहांगीर में लिखा है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, ये क्लिप तो एक दिबाचा है किसी किताब का समझें। अगर इस शहर के हुस्न को जानना चाहते हैं और उसको महसूस होना चाहते हैं, और ऐसे नायाब इल्म के गोशे लिखे हैं मैंने इस शहर के बारे में अपनी इसी किताब में, तो वो जरूर पढ़िए। लेकिन ये शहर मेरे दिल में बसता है, सोफिया। ये इसका थिएटर है, खूबसूरत थिएटर है ये पूरे मशरकी यूरोप में। इस शहर का हुस्न यहाँ के थिएटर, सिनेमा, यूनिवर्सिटियाँ, बाग और शहर के अंदर जंगल। मेरा एक पूरा चैप्टर है शहर अंदर जंगल। ऐसा शहर कि जिसके बीच में जंगल हो, क्या बस्ती होगी, कैसे लोगों की बस्ती कि जिसके शहर के अंदर घना जंगल हो, पार्क्स हों, थिएटर, सिनेमा, यूनिवर्सिटीज, मसाजिद, सिनेगॉग और न जाने क्या क्या। यह है सोफिया का हुस्न। लोग समझते हैं यूनान का एथेंस बड़ा कदीम शहर है यूरोप का। यूरोप का सबसे कदीम शहर सोफिया है। सार्दिका, ये उस शहर के खंडरात हैं, 7000 साल पुराना शहर। हम जो अपने तासुबात में रहते हैं, कौमी और नस्ली जबान के तासुबात में, जब मैं जहान घूमता हूं तो ये तासुब खुद टूटना शुरू हो जाते हैं कि इंसान एक ही खित्ते में अपनी अजमत की दास्तानें बयान करता हुआ नजर आता है तो छोटा लगता है। इंसान वही बड़ा जो दुनिया देखे। ये शहर मैंने जैसे देखा 1983 में, उसकी तफसील तो मैं हूं जहांगीर में है। खूबसूरत मकानों का शहर, खूबसूरत मकीनों का शहर, ट्रामों और गुलाब का शहर, धूप पहाड़ों के अंदर आबाद ये बस्तियां मशरकी यूरोप का हुस्न है। ऐसा हुस्न
जो किताब पढ़े बगैर समझा नहीं जा सकता। ये तो उस शहर की एक झलक है, एक ऐसे शहर की झलक जो कभी सुर्ख जन्नत का दारुल हुकूमत था, आज ये सरमायादारी का दारुल हुकूमत है। बल्गारियन रिपब्लिक जो है आज कम्युनिज्म को खैरबाद कह चुकी है, लेकिन इस शहर की कई चीजें अभी नहीं बदली। इस शहर के अंदर उस दौर के क्या असरात हैं जो सुर्ख जन्नत ने दिए, सादगी, खूबसूरती, अमन, मोहब्बत, इंसानियत। मैं उन लोगों को बड़ा इंसान मानता हूं जब आप किसी बस्ती में जाएं तो आपका मजहब और आपकी नस्ल ना मिलती हो और वो आपको कहें वेलकम टू बल्गारिया।